You were on season 1 of Shark Tank, and Namita and Piyush invested in you. They couldn't come, and then we raised at a better. They delayed or you dodged them. No, so I think you can say confidential. यार खुल के बताना है यार, क्या confidential? So I think Just left your job before going for Shark Tank. अच्छा, उससे पहले नौकरी चल रही थी. एक मैं पहले बिजनेस कर चुका हूँ, 6 साल चलाया है. What was the name? Cafe Buddies. And it was a cafe. It was like cafe, मतलब 100-200 square feet, 110 स्टोर चलाए, all in the metro location. कैसे मिल गया इतना कॉन्ट्रैक्ट? Yeah, I think Experience of running your own business versus experience of working under someone or with the team as a GM, क्या फर्क है दोनों? तो मुझे लगा Cars 24 में What is Store My Goods? थोड़ा ये तो समझाओ. स्टोरेज बिजनेस इज समथिंग लाइक इन केस अगर आप अपना घर रिनोवेट कर रहे हो, घर रिलोकेट कर रहे हो, सो यू एसेंशियली स्टोर विद अस. जब डील जो टीवी में हुई थी उसके बाद रीनेगोशिएशन कुछ हुआ? क्योंकि डील के बाद वाला प्रोसेस मुझे नहीं पता. तो देखो शार्क में जरूरी नहीं है कि सारी जो पिचेस होती हैं ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन भी वो You were on season 1 of Shark Tank. Shark Tank का कैसे हुआ? बिटवीन दैट कॉल कि आपका शार्क टैंक में हो गया है, बहुत सारी चीजें हुई. And Namita and Piyush invested in you. they couldn't come, and then we raised at a They delayed. Let's start with Shark Tank. Experience कैसा था? You know, all of a sudden I felt after the second day, आप celebrity हो, people will start knowing you. Shark Tank के बारे में बताओ यार, फर्क क्या था सीजन 4 वर्सेस सीजन 1 2? Season 4 TV पे air ही नहीं है. ग्रेट. सुदीप गुप्ता. यार मैं भी गुप्ता, तुम भी गुप्ता. हाँ, तो कहाँ से हो तुम? गुप्ता बनी हो? yes definitely. फ्रॉम वेयर? So I was born in Ghaziabad. Yeah, then my dad belongs to Lucknow. And yeah, and then schooling and everything I did from DPS Mathura Road. So बट बनियागिरी कुछ है, सीखी है जिंदगी में? कहीं से ऐसा लगा है कि तुम बनिए हो, या फिर तुम? सी लोगों का मानना ये है कि बनिया खाली नाम वाला है, बाकी नॉट दैट कंजूस. नहीं, कंजूस नहीं, मे बी एफिशिएंट भी बोला जा सकता है. हाँ, और फिनेंस में तेज. मैं तो बनियों को फिनेंस में तेज मानता हूँ. हाँ, तो आई थिंक फाइनेंस इज समथिंग जो मेरे को बिजनेस ने ज़्यादा सिखाया है, बट नेगोशिएशन में अच्छा हूँ, दैट इज फॉर श्योर. नेगोशिएशन, दैट्स बनियागिरी इज नेगोशिएशन. उसमें तेज होना बहुत जरूरी है. तो ग्रेट यार. आई थिंक सो यू आर ऑन अ स्पेशल शार्क टैंक सीरीज पॉडकास्ट विच वी आर पोस्टिंग ऑन काश से आकाश. बट उसको शुरू करने से पहले हम एक जिप की तरफ से एक प्लांट देते हैं आपको, थैंक यू सो मच. एज आर ग्रीन इनिशिएटिव. थैंक यू. Yeah. Thanks. And yeah, let's make the podcast look more greener with this. But great, yaar. Store My Goods. That's your business. Right. You were on season 1 of Shark Tank, and incidentally, I was also on season 1. Right? तो very interesting यार. तो season 1 कैसा लगा तुम्हें? अब आज देखो तो how was the journey? You were aired? Yes, we were aired, and it was a good hype we got from Shark Tank. I think Shark Tank happened. I mean, and Namita and Piyush invested in you. Yeah, so we got commitments from both of them. However, we raised money from outside investors. Acha, they finally couldn't come. They couldn't come, and then we raised at a better valuation, and They delayed or you dodged them. no, so I think you can say confidential. It's more like यार खुल के बताना है यार, क्या कॉन्फिडेंशियल? क्या हो गया? अब हो गई जर्नी, शार्क टैंक हो गया. अब किसने क्या गलती करी बता? नहीं, nothing. फिर भी बता ना. यू डॉज देम, यू डिडंट वांट देम, और यू सेड कि मेरा हायर राउंड कर दिया, तुमने टर्म शीट यूज करी, या फिर उन्होंने डिले किया? कुछ भी हो सकता है, या कोई चौथा रीजन है तो वो. So I think we got a term sheet. ठीक है, फ्रॉम शार्क टैंक. Shark Tank से तो मिला जो मिला, but we got term sheet from outside investors. It was a US consumer tech fund, and which was good. It was good water capital, and we raised money, the first check from them. It was a higher valuation than what you aired. Valuation, and then कितना ऊपर था valuation? I think it was about 3x more than शार्क टैंक में तुम 57 करोड़ की वैल्यूएशन पे गए थे. right. Like हाँ, जो मिला था वो कम पे था. अच्छा. And then we raised a little above this. मिला कितना था शार्क टैंक पे 57 की जगह? I think about 25 with equity thing, with debt and equity का. डेट एंड इक्विटी डील थी. 25 करोड़ का वैल्यूएशन मिला था फ्रॉम बोथ ऑफ देम. और फिर
तुम कितने देर बाद शार्क टैंक के यू गॉट द टाइम हुआ, इट्स बीन अबाउट अ ईयर, एक साल लग गया, एंड वी वर पॉजिटिव, सो एंड वी गॉट द माइलेज विच वी कुड हैव गॉट, सो इट हेल्प अस टू. तो कहीं ना कहीं डिले था, एक साल अगर रह गया तो डिले था. हाँ, एंड देन आई वॉज, सो बेसिकली हुआ क्या कि शार्क टैंक जब मैं गया, essentially the day I was on Shark Tank, that is the time when I resigned from the company where I was working. The day I went live on Shark Tank. That is the day I resigned. Otherwise, तो साइड हसल चल रहा था. side hustle चल रहा था. So my wife, who is a lawyer, got into this full time. She was, in the legal counsel team of Canon India. So she got in full time first, and then essentially I got into it. अच्छा, your wife started the business. So I started, but she left her job and got into it to manage the team, and then So तुम दोनों, you guys both co-founders? co-founders, yes. अरे वाह, husband wife. Very similar to my story, man. Love it. I have seen your story, yes. Crazy. And we were both on Shark Tank season 1. यार, you also came to raise funds. कुछ अपनी बात हुई थी ना? You came to my office. Right, I came to your office when you were in Sector 44, just opposite Cars The 24. seventh floor, Delta Tower. Yes. लेंस कार्ड के ऊपर वाला ऑफिस. तो वहाँ पे you came to pitch me. In a way, कुछ तुम्हारा फंड. That time I was pitching all the founders. That was our angel kind of a round. तो वो शार्क टैंक वाला राउंड था. हाँ, उसी के. शिट, मैंने तो मिस कर दिया फिर. Yeah, so Lovely, man. Somehow this is amazing. So you raised a little bit beyond that from them and they delayed. तो राउंड हो गया. अभी कैसा चल रहा है बिजनेस? doing fine. We raised a smaller round that point of time, and we raised another round about quarter back, which we could call it a pre-series A kind of a round, which should ideally be out in some time. Amazing. तो एक और राउंड हो गया उसके बाद. हाँ, उसके बाद we have just done another. Superb. And this one is at what valuation, if you can justify? It's about, I mean, I will not like to quantify. It's just above 100 crores. So Wow, that's amazing. So 20 crore Shark Tank पे मिल रहा था. You raised at about 60-ish, and now you are crossing 100. Crazy, man. yeah, so it's Husband wife couple doing well. I love it. What is Store My Goods? थोड़ा ये तो समझाओ, क्योंकि इतना अच्छा बिजनेस, शार्क टैंक पे गए, जैसे तैसे कुछ भी हुआ, right? We'll come back to the Shark Tank experience and all, because that's the show about. But I think we would love to know what is Store My Goods. So basically, storage business is something like, in case अगर आप अपना घर renovate कर रहे हो, अगर आप अपना घर relocate कर रहे हो, या फिर आपको घर का extension चाहिए, you live in a 2 BHK, then you are out of space, you need more space, right? So you essentially store with us, right? If you're renovating, you might need to store your goods, household stuff. But वो तो रातों रात हो जाता है. Renovation. अच्छा, renovation में नहीं होता. Okay, so I'm moving out. Yes, so आप क्या करोगे, अपने एक रूम से दूसरे रूम मूव करोगे typically, right? So we come to your house, we pick, pack, we catalog all the goods. हम store करते हैं, and we do it on a subscription model. It's like a warehousing business. It's a typical warehousing, but a tech-enabled one. Right. So you pay for what you store, right? No, but warehousing is very different then. There's a dark store, there's a large warehouse of, let's say Mamaearth, and then there is this kind of storage. So is this kind of a niche storage business that you're in? So this is primarily for B2C that we started off. Okay. So we currently have served more than 4,000 customers, out of which about 2,000 odd customers are. And this mainly, I can see your logo also, which is home storage solutions. Because you've got a home icon, so it's very niche, I would say. Is this, how do you know that does something like this exist in India already before you? There were few companies. हाँ, but वो store भी करते हैं. Store भी करते हैं, but उनका main focus नहीं है, और there are एक दो और भी companies हैं. कोई main ये वाले focus वाली company है? South में company है, and then there is one more company. But वो tech enabled हैं? Few of them are, but I would say it broken है. मतलब there is a convenience which is missing in the complete ecosystem. So what we are trying to do is so idea आया कि I was working with Oyo Hotels. Oyo में मैं एक director था, supply business. I was leading Europe and Canada markets for them. And then COVID happened and people, सब लोग अपने घर चले गए. अब उनको पता नहीं था कि वापस आएंगे शहर में, नौकरी करेंगे, क्या करेंगे. And they were paying rentals for their home. And we had a space in our place, and then I was giving lectures
in one of the universities in Thapad, and I thought कि एक बार सोचते हैं, कि US में it was a very promising business, and I thought कि एक space है, and like people want to store, why not during the time of COVID हम जाएं उनके घर सारा सामान पिक करें और स्टोर करें. तो जहाँ पे हमें रेंट बिल्डिंग का नहीं आता क्योंकि कोविड में तो कुछ रेवेन्यू था ही नहीं. So we were making 3 to 4x of the revenue of that premise, and that's how it started. अच्छा, तो ये ओयो करता था ऐसा कुछ नहीं, तुमने स्टार्ट कर दिया तब, तुम्हें लगा एक वाइट स्पेस है, बट ये यूएस वाला एक्सपीरियंस था तुम्हारे पास तब? Yes, so I lived in Europe for 3 years. I've studied there. और तुमने ऐसी कोई सर्विस यूज़ करी है वहाँ? Yes, because जब आप लंदन में, I was studying in London, जब मैं इंडिया आया तो मुझे अपना रूम खाली करना पड़ा. So there are कॉन्सेप्ट्स लाइक दैट जहाँ पे आप 2 महीने 3 महीने आप क्यों 500,000 पाउंड्स दोगे, यू जस्ट टेक अ 50 पाउंड ऑफ लॉकर और अ स्टोरेज एंड स्टोर देयर. तो इट्स अ $60 billion इंडस्ट्री इन द US, and it's a big business in Southeast Asia as well. So StoreHub is one of the bigger companies जो ऑपरेट कर रही है 13 कंट्रीज़ के अंदर. It's backed by Capital Land Group or Warner Pincus, so it's big. But one of your things is that when I'm renovating, what are the other use cases? So if अगर आप relocate भी करते हो, दिल्ली से आपको बैंगलोर जाना है, मुंबई जाना है, अब आपको अपना सामान लेके जाना है, then you need to store, you need to find apartment, but you're not sure कि भाई मेरे को मुंबई में क्या मिलेगा, 2 BHK मिलेगा, 1 BHK मिलेगा, and then you can take a storage unit for some time and then find it out. So that is another use case. It's a little premium. I mean, I think I would say our pricing starts from 100 rupees a box to store. So हमारा average ticket size 4,000 per day, per month. So Okay. average ticket size a customer pays is about 4,000 rupees. That's it. For storing a 1.5 BHK kind of format. अच्छा, 1.5 BHK का सारा सामान 4,000 रुपये पर मंथ में, बहुत सस्ता है. सस्ता है बिल्कुल. अगर आपका रेंट, सो हम डायरेक्टली कोरिलेट करते हैं इसको. अगर आप शहरों में सस्ता है, मेरे को लोग ना बोलते हैं बहुत महंगा है, बिकॉज आई थिंक from a premium perspective, it looks good that I have my belongings, I want to keep it. 4,000 a month for a 1 BHK house is not bad in a city like Gurgaon. हाँ, सो आप अगर इसको कंपेयर करो, अगर कोई अगर रेंट दे रहा है अपने घर का 1 लाख रुपया रेंटल, तो उसका स्टोरेज टिपिकली 10,000 रुपये महीने में हो जाता है. कोई 50,000 दे रहा है तो 5,000 में हो जाता है. सो दैट इज़ हाउ टिपिकली इट वर्क्स, बट वी हैव अ प्राइस. यस, 110. सो दैट्स द वैल्यू प्रोपोजिशन. वेरी इंटरेस्टिंग. और कितने कस्टमर्स तुमने बताया आगे? सो अभी तक हम 4,000 कस्टमर्स को सर्विस दे चुके हैं. 4,000 कस्टमर्स इन हाउ मेनी मंथ्स? इन अबाउट 3 years. 3 years, 4,000 कस्टमर्स. तो एंड पर मंथ कितने कस्टमर्स आते हैं? पर मंथ हमारे अब जो ट्रेंड हमारा चल रहा है 300-350 कस्टमर्स वी आर ऑन बोर्डिंग एवरी मंथ. Every month now? हाँ, लास्ट 1 year we started building. Last 1 year में कितने हुए? Last 1 year में we have added over 1,500 customers. Wow, last 1 year. And when you went on Shark Tank, how many customers were there? तब तो कम थे. मतलब हम अराउंड 300-350 कस्टमर्स के आसपास होंगे. और अब 4,000 हो गए हैं. Wow, you had just started and you said that you had just left your job before going for Shark Tank. अच्छा, उससे पहले नौकरी चल रही थी हैं? And this was because of their mandate or this is something? No, it was something I thought कि it's a full-time thing now. I should give it because उससे पहले I've done मैं पहले बिजनेस कर चुका हूँ. अच्छा, 6 साल चलाया है. So that was in the. नौकरी करते करते ही? नहीं था, तो फुल टाइम था. What was that? So मैंने अपना बैचलर्स किया Amity से. Then I did my MBA from ESCP, एक फ्रेंच बिजनेस स्कूल है which is tied up with MDI गुड़गांव. 2007 में मैंने स्टार्ट किया और 2009 तक मैंने किया. एंड I mean it's a 1 year program normally in Europe. And then I did my internship with Lafarge. अब इंटर्नशिप वहाँ Lafarge में चूज़ किया. वो भी एक मकसद था कि I was getting into a sustainable development role. My role was to audit plants of Lafarge. तो मेरा एक मोटिव क्लियर था कि भाई यूरोप घूमने को मिलेगा, डिफरेंट प्लांट्स विजिट करेंगे और just find out. And this was a campus placement? It was campus, yes. It was campus and you have to apply on the internet and you get, so it was in Paris headquartered. Nice. And I was into RMC sustainable development. 750-117 was the pin code. So I speak French. So वहाँ पे मिला and then around 9-10 महीने वहाँ internship किया. Then I thought कि चलो इंडिया जाने से पहले एक I should get a job. So then I moved to Düsseldorf. I worked with Henkel.
Henkel is a German Unilever. Henkel Pharma. Henkel is a German Unilever. अच्छा Unilever, या मैंने सुना है Henkel का. तो it's they have products जैसे Prill, Persil, Schwarzkopf. Oh, what were you doing there? I was in strategic marketing. तो वहाँ पे my role was to develop new products and do the marketing plan for that. So about एक साल वहाँ काम किया. उसको करने के बाद मैं इंडिया आया था 2010 में. एंड देन उस टाइम पर दिल्ली मेट्रो बन रहा था, मतलब चालू हो गया था. और वहाँ पर लंदन में मैंने जो देखा, लंदन अंडरग्राउंड में यू हैव दोस कियोस्क इन द मेट्रो स्टेशंस, और यू वुड हैव सीन इन पेरिस एंड जर्मनी. सो वहाँ पे एक चीज़ समझ में आई कि काफ़ी पोटेंशियल है. एंड दिल्ली मेट्रो देखा तो आई रियलाइज कि यहाँ पे रिटेलिंग कन्वीनियंस ऑन द गो, विच इज़ लाइक कोई भी ऑर्गेनाइज्ड कैफ़े नहीं है दिल्ली में. कैफ़े कॉफ़ी डे होता था उस टाइम पर, बट वो भी बड़े फॉर्मेट में था. कॉफ़ी डे एक्सप्रेस वॉज वेरी लेस बट वेरी प्रीमियम. सो देयर वाज नो ऑर्गेनाइज्ड चेन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम 2010. देन मैंने बोला कि कुछ करते हैं. छुट्टी में मैंने मीटिंग सेट करी श्रीधरन सर के साथ, who was the managing director of DMRC. Delhi Metro. Delhi Metro. Sridharan is the metro man of India. Yeah, I know. Yeah, so I set up a meeting with him and उनको pitch किया. Made a presentation. Cafe Buddies was the name of the brand. And उनको बोला सर ये करना है. So that was the journey of coming back and leaving a job and starting this. उसके बाद अच्छे से launch हुआ. Launch पे वो खुद आए and then it was a good launch और अच्छा hype हुआ. And then we got a contract for 65 stores in Metro. What was the name? Cafe Buddies. And it was a cafe. Cafe. It was like cafe, मतलब 100-200 square feet वाले. तो तुम एक प्रॉफिटेबल चला लिए थे कि 65 की प्लानिंग कर ली थी? Profitable. So it's a highly profitable. तुम्हारा धंधा था? You? हाँ, I was the founder. Along with your wife there? No, my wife. Alone? Alone. My dad was also a working professional, so he left and he's also started along with me, right? Yeah. 65 stores सारे खोल लिए? सारे खोल लिए. फिर क्या हुआ? उसके बाद 110 तक लेके गए. हाँ. So 110 स्टोर चलाए. That's and all in Delhi. All in the metro location. कैसे मिल गया इतना कॉन्ट्रैक्ट? नहीं, आई थिंक कॉन्ट्रैक्ट आते थे, बिडिंग करनी होती थी. आप अच्छा, वो नेटवर्क तुम्हें समझ में आ गया था. बिडिंग, टेंडर, व्हाटएवर द प्रोसेसेस, यू बिल्ड दैट. 110 stores in how many cities? ये तो खाली दिल्ली एनसीआर में था. Oh, Delhi NCR only 110 stores. That's what I was asking. I thought you said all the metro All the metro stations of Delhi. of the Delhi. Profitable. अच्छा, तो वो बिजनेस 2015 तक चला है. 16 तक चला. और ये तुम्हारा पहला एंटरप्रेन्योरियल जर्नी थी. और उससे पहले लफार्ज कितने साल? हेंकेल 2 साल. 2 साल काम किया और ये बिजनेस बनाने लग गए. वेरी इंटरेस्टिंग. एंड योर डैड वाज वर्किंग, यू जस्ट वांटेड टू बिल्ड कैफेज. हाँ, सो माई डैड हैज़ बीन वर्किंग प्रोफेशनल. मतलब ही इज़ अ ब्रांड गाय. सो आई मीन यू वुड हैव हर्ड लॉट ऑफ ब्रांड्स जिन्होंने बनाए हैं. So you would have been, so Uncle Chips का नाम सुना होगा आपने. So he created that brand for the company. Oh really? He's a marketing guy. He's a marketing guy. He created Real Juice for Dabur. The brand ads or? No. He started. So he was group strategic head for Dabur. Very nice. तुम्हारे पापा मतलब ब्रांड में थे और ये फिर इसमें तुम्हारे साथ आ गए और ये पहला स्टोर तुमने खुद से खोला है ना? वेरी गुड यार. उसके बाद फिर आई थॉट कि अब क्या करें. बिजनेस करने के बाद अब लगता है कि दोबारा से बिजनेस करना, इट्स नॉट दैट क्विक कि भाई कोई आइडिया आएगा आप एग्जीक्यूट करोगे. एंड देन अब मेरे पास ऑप्शन था कि भाई दोबारा जॉब करते हैं, कुछ नया स्टार्ट करते हैं. समहाउ देयर वाज अ कंसल्टेंट हु कॉल्ड मी अप एंड तो एक स्टार्टअप के लिए हायर कर रहे थे वो लोग. तो उस वक्त जो स्टार्टअप के लिए हायर कर रहे थे एंड स्टेल्थ मोड में था. एंड देन आई मेट द फाउंडर्स. और वो स्टार्टअप आज यूनिकॉर्न है. इट्स बिग कंपनी. अरे नाम बोलो. Cast 24. अच्छा, तो उस समय बन रहा था Cast 24. You were one of the early member? I'm 2016. What number as employee? No, not maybe above 100. Not bad. You can just put it like my ESOPs is more than what I earned in my lifetime. So. अच्छा, very good. And you were reporting to whom? Ruchit. Oh, nice. And what were you doing? So I joined them as general manager for real estate and growth. Oh. So I was leading their growth verticals. But why would you decide? मतलब मैंने ये देखा है, once an entrepreneur, always an entrepreneur. मतलब बहुत मुश्किल मुझे ऐसा लगता है as an inertia कि मैंने 6 साल 110 स्टोर का बिजनेस बनाया, which must have been done well. You would have made money in that, है ना? Good money. And then going to join a founder. One, tell me, how did you make that decision? Why not a startup again?
And second question is, how was that experience versus building your business? ये दो question. सो मुझे लगता है आई हैड 3 ऑफर्स दैट पॉइंट ऑफ टाइम में, बस 3 ऑफर थे. एक F&B इंडस्ट्री में था, US चेन हु वाज कमिंग टू इंडिया टू लीड देयर बिजनेस. दिस वाज एक. दूसरा ऑप्शन ये था और एक और ऑप्शन था. तो मुझे लगा ये फाउंडर्स हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, एक वॉटन पास आउट है, एक IIT है और सब लोग पढ़े लिखे हैं, कुछ अच्छा कर रहे होंगे. एंड आई थिंक स्टार्टअप का क्रेज़ चालू हो गया था, लोग इन्वेस्टमेंट्स आ रही थी. एंड आई थॉट कुछ नया सीखेंगे और स्केलेबल सोचेंगे. यू नो लाइक इट्स बहुत डिफिकल्ट होता है अगर आप फूड का बिजनेस कर रहे हो तो फूड से बाहर निकलना, F&B से, राइट. बिकॉज अगर रेस्टोरेंट वाला कोई सोच रहा है, F&B सोच रहा है, तो वो लाइफ में वही सोच सकता है. मुझे लगा टाइम. टेक बिजनेस, हाँ. तो समझने में टाइम लगा, 1-2-3 साल काम किया, 3 साल उनके साथ काम किया और समझ में आया कि हाँ भाई बिजनेस बना रहे हैं, अच्छा बना रहे हैं. वो मतलब टेक का तुम्हारा उस समय माइंड ही नहीं था? नहीं था, बिल्कुल नहीं था. यू वर इन द होटल. वो उस वक्त भी मेरे पास आइडियाज़ आते थे. मतलब जब मैं उनके पास था, बीच में आई वेंट टू कोरिया बिकॉज मी एंड माई डैड वर लाइक लुकिंग एट जॉइंट. सो हमने एक EY के थ्रू एक जॉइंट वेंचर किया एक कोरियन कंपनी के साथ, मिस्टर पिज़्ज़ा. दे आर द बिगेस्ट सबसे बड़े पिज़्ज़ा चेन है कोरिया के. दे 1300 स्टोर्स हैं. तो उनके साथ किया, बट एसेंशली वो इट डिड नॉट fall through because there were some issues with the company. Oh, so the deal didn't happen. Deal did not happen. I mean, we'd signed a MOU with them. सारी चीज़ें हुई, तो किया, but I think वो कंपनी का कुछ इशू था with case which happened in Korea. अच्छा, वो नहीं हो पाया. तो वो नहीं हुआ. फिर धीरे धीरे F&B माइंड से निकल गया. तो Cars 24 कितने साल की? हाँ, 2019 तक मैं वहीं पर था. 16 से 19 Cars 24 में. अच्छा, और अच्छा रहा वहाँ पे रन? अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा. एक्सपीरियंस ऑफ रनिंग योर ओन बिजनेस वर्सेस एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग अंडर समवन और विद द टीम एज अ GM, क्या फ़र्क है दोनों में? सो मुझे लगा Cars 24 में मेरी ही कंपनी है. मतलब मुझे बिकॉज वहाँ पे जो था उस टाइम पर. एंड देन सॉरी आई ऐड, एंड नाउ बिल्डिंग योर ओन अगेन. तीनों का फ़र्क बताओ. सो अपना काम किया. उस वक्त आई वॉज लाइक, मुझे समझ में आया कि हाँ जो मैं कर रहा हूँ, उस वक्त मेरे पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था मेरे बिजनेस के लिए शुरू में जो किया. बट यू वर लाइक अ फाउंडर देन. इन टुडेज वर्ल्ड यू वुड बी लाइक अ चाय पॉइंट. और उस टाइम पे हमें सैफ पार्टनर से ऑफर भी आया था. एंड देन एक ग्रुप है नेपाल की जो कंपनी है, सो उन्होंने बोला 51% लेना चाहते हैं कंपनी में. हम प्रॉफिटेबल बिजनेस थे, अच्छा पैसा बना रहे थे. एक हमने जॉइंट वेंचर भी प्लान किया. और उसके बाद जब Cars 24 किया तो वहाँ पे ये समझ में आया कि चीज़ें किस तरीके से स्ट्रक्चर कर सकते हैं, हाउ टू मैनेज टीम, क्या इश्यूज आते हैं, फंड रेज कैसे होता है. इतना नॉलेज नहीं था फंड रेज का. बिकॉज यू वर बूटस्ट्रैप्ड, योर माइंडसेट बूटस्ट्रैप वाला था. फंड रेज तो अपना ही काम करके समझ में आया. वो Cars 24 में भी ज़्यादा नहीं, आई वॉज क्लोजली ऑन दैट. बट हाँ, ये समझ में आया कि 2 लोगों से 50-60 लोगों की टीम कैसे मैनेज कर रहे हैं. मेरे को एसोसिएट डायरेक्टर बना 3 साल में, तो 4 जनरल मैनेजर्स कैसे मैनेज करने हैं. यू नो, मैंने उनका फ्रेंचाइजिंग बिजनेस लीड किया. ग्रोथ 150 स्टोर्स खोले अक्रॉस इंडिया, वेयर हाउसेस खोले. सो सारा रियल स्टेट समझ में आया. IPCs के साथ काम किया, JLL, कुशमैन कॉलियर के साथ काम किया. डील स्ट्रक्चरिंग कैसे होती है, स्टैगरिंग कैसे करते हैं, फाउंडर्स के साथ बहुत अच्छी लर्निंग्स मिली. और फिर समझ में आया कि हाँ, रियल स्टेट में समथिंग जो मेरे को अच्छा लगने लगा, राइट. मतलब अब वहाँ से ये सारी चीज़ें हुई. उसके बाद एक अपॉर्चुनिटी आई OYO होटल्स की. कब? 2019 में. व्हेन यू वर इन Cars 24, क्या अपॉर्चुनिटी आई? वो चाहते थे कि कोई एक ज्वाइन करे टू लीड देयर सप्लाई बिजनेस फॉर यूरोप मार्केट. तो मैंने ज्वाइन किया. अच्छा, OYO ज्वाइन किया. फिर उस समय तक ये बिजनेस SMG स्टोर माई गुड्स वाज नॉट देयर. ठीक है, ये 2021 दिसंबर में फॉर्म हुआ है. तो OYO ज्वाइन किया. टफ डिसीजन था. Cars 24 बहुत ही दिल के करीब है, अभी भी दिल के करीब है, बिकॉज फाउंडर्स हमारे इन्वेस्टर्स भी हैं. तो मैंने ज्वाइन किया रितेश और अभिनव सिन्हा एंड आनंद. आई ज्वाइंड एज अ डायरेक्टर सप्लाई. अच्छा, वो जब OYO एक्सपैंड कर रहा था तब की बात है? 2019, प्री कोविड. वाओ. सो योर जॉब वाज टू ब्रिंग होटल्स इन एंड मेक them OYO nationally? No, it was Europe role. Europe role. You launched OYO in a way. You were the first guy in. No, I think there were few people, but मैं इसलिए हायर हुआ था क्योंकि मैं लैंग्वेज बोलता था. I had a network there and I could understand the culture and all. So वहाँ पे 2019 में I launched Spain, Italy and Germany for them. तो 3 countries. Your connection to Europe. हाँ, तो मैंने बोला ट्रैवल करने को मिलेगा और वहाँ पे दोबारा जाके गुड टू बी वर्किंग विद द टीम देयर.
तो हमारा एक ऑफिस मिलान में था, एक ऑफिस हमारा बर्लिन में था, और तीसरा हमारा इटली, स्पेन एंड बार्सिलोना में था, एंड मैड्रिड में था. सो ब्यूटीफुल प्लेसेस. वहाँ पे जो सप्लाई है, जो होटल, बजट होटल हैं, वो बेसिकली माफिया ऑपरेट करता है. वो या तो रशियन माफिया है, चाइनीज़ माफिया है, या फिर इटालियन माफिया है. माफिया इन द सेंस लाइक लोकल ऑपरेटर्स, राइट. एंड देन वी हैड कैंपसेस, स्पेन में भी था, इटली में, जर्मनी, हर जगह कैंपसेस थे हमारे. सो आई वेंट टू द डायरेक्टर दैट वी नीड टू डू हायरिंग ऑफ द स्टूडेंट्स, एंड लोकल जो मैंड्रिन भी बोल रहे, यू नो, सो सारी लैंग्वेजेस बोल रहे. एंड देन वहाँ से हमने पिच करना शुरू किया होटल ओनर्स को, मीटिंग्स मिलनी शुरू हुई. ओ, स्टूडेंट्स के थ्रू. एंड देन उनको हमने इंटर्नशिप दिया, फुल टाइम ऑफर किए. तो वो सारी जर्नी शुरू हुई, और उसके बाद वी स्टार्टेड ऑनबोर्डिंग द पार्टनर्स देयर, सप्लाई साइड. तो वो अच्छा हुआ. उसके बाद मैं थोड़े टाइम के लिए कनाडा मूव हो गया. वहाँ पे अब मॉन्ट्रियल और क्यूबेक लॉन्च करना था, अगेन फ्रेंच स्पीकिंग एरिया. सो वहाँ पे हायर किया और लॉन्च किया. वहाँ की स्ट्रैटेजी ये थी कि भाई कनाडा में जब लॉन्च करना है तो ठंड में लॉन्च करो, बिकॉज ऑक्यूपेंसी कम होगी. तो हम पहुंच गए -30 डिग्रीज में इन दिसंबर टू लॉन्च मॉन्ट्रियल. एंड योर वाइफ वाज वर्किंग समवेयर? माय वाइफ वाज इन कैनन इंडिया. वो कैनन इंडिया में, हाँ, लीगल काउंसिल थी. लीगल, श्योर. ही वर्कड उससे पहले 7-8 साल दिल्ली हाई कोर्ट में. अच्छा, शी इज अ लॉयर. या तो वहाँ पे फिर वो लॉन्च किया, और उसको करने के बाद कोविड हुआ. कोविड के बाद हम इंडिया आ गए. एंड देन एसेंशियली यू नो हॉस्पिटैलिटी वाज नॉट दैट ग्रेट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. ओयो भी शायद बंद कर रहा होगा वो सारे. ओयो ने कुछ मार्केट्स बंद किए, बट सस्टेन किया. एंड किया वहाँ पे 7-8-9 महीने किया. एंड यू केम टू ओयो इंडिया? आई वॉज इन इंडिया मैनेजिंग ऑल द कैपेबिलिटीज़ फॉर ऑल द कंट्रीज. जितनी भी कैपेबिलिटी सारी कंट्रीज़ की होती थी, अगर मार्केटिंग टीम जापान की थी या चाइना की थी या हर कंट्री की थी, उसको हमने इंडिया में बिल्ड किया. जितना भी कंटेंट जाता था, ट्रांसलेशंस एंड एवरीथिंग, सब इंडिया से करना शुरू किया. सो बेसिकली ऑप्टिमाइज़ की चीज़ें. एंड फिर यहाँ पे आई थिंक ये आइडिया आया. और क्योंकि लोग स्ट्रगल कर रहे थे अपने घरों से, लाइक यू नो दे वर पेइंग रेंटल्स. कोविड के समय ये आइडिया आया. नाउ कनेक्टिंग बैक टू योर आइडिया विच केम, एंड देन फिर ये नौकरी करते करते स्टार्ट किया. वो बताओ, वो कैसे किया? तो अब कोविड के टाइम में कर रहे थे, हासिल कर रहे थे. एंड लाइक यू नो लाइक आई वाज वर्किंग, एंड देन दिस वाज मोर लाइक कि भाई ठीक है, ऑन एक प्लेटफॉर्म बना दिया था, और कस्टमर्स आ रहे थे. काफ़ी लोग जो जिनके पास जॉब नहीं थी. क्या प्लेटफॉर्म बनाया था? प्लेटफॉर्म था लाइक बेसिक लीड जनरेशन. आइडिया मतलब ओयो में रहते रहते आया? हाँ, रहते रहते आया. कैसे बनाया प्लेटफॉर्म? प्लेटफॉर्म बेसिकली वेबसाइट बनाया. मतलब तुम्हारे दिमाग में आइडिया? हाँ, दिमाग में. वो यूरोप वाला या यूएस? और ओयो में भी लगा कि कुछ है ऐसा? हाँ, हम कुछ सर्वे किया 200 एम्प्लॉइज़ पे, अलग अलग जगह के एम्प्लॉइज़ पे. हाँ, तो फिर वैलिडेट किया. कैसे वैलिडेट किया? लोगों से पूछ के कि अब क्या कर रहे हो आप लोग, अपने रेंट दे रहे हो तो भाई क्यों दे रहे हो. ये कोविड के टाइम की बात है, राइट. तो ऐसे स्टार्ट किया. फिर कंपनी बनाई? फिर कंपनी हमारी एक कंपनी थी जो हमारी फैमिली कंपनी थी, उसी में स्टार्ट कर दिया. वही वाली? नहीं, मेरे डैड की कंसल्टिंग कंपनी थी, वहाँ पे स्टार्ट कर दिया. बिकॉज अभी क्यों पेपर वर्क करना, सारी चीज़ें, श्योरिटी नहीं थी. तो हमने तो कोई वेबसाइट बनाई? हाँ, वेबसाइट बनाई, स्टोर माई गुड्स. डे 1 से वही वेबसाइट है. और फिर 1 साल तकरीबन काम किया, और रेवेन्यू बनाया. 7-8 लोगों की टीम बना ली. While you were at the job? While I was at the job, yes. साइड हसल चल रहा था? मेरी वाइफ ने फिर फुल टाइम ज्वाइन कर लिया. कितने टाइम बाद? 6 महीने के बाद ज्वाइन कर लिया. हाँ, फुल टाइम. She left her Canon job. तो हम अफोर्ड कर पा रहे थे. ओह नाइस. तो पैसा बन रहा था? पैसा बन रहा. सिर्फ वेबसाइट पे? तुमने एक वेबसाइट बनाई कैसे? खुद से बनाई किसी? नहीं, मैं एक्चुअली जब जाता था लेक्चर्स देने, लाइक यू नो टॉक्स करने, तो थापड़ यूनिवर्सिटी में आई मेट. टॉक पे क्यों जाते थे? वो अपने कैफे वाले धंधे के कारण? नहीं, Cars 24 ओयो. सो हाँ, सो वहाँ पे कुछ अच्छे स्टूडेंट्स मिले थे, एंड दे वर लुकिंग टू डू सम इंटर्नशिप. उनसे वेबसाइट बनवाई? ऐप वैप नहीं थी? ऐप वैप नहीं थी, सिर्फ वेबसाइट और एम साइट. तो वो किया, और वहाँ से एड्स रन किए, एंड यू नो स्टार्टेड ऑनबोर्डिंग कस्टमर्स विद इन गुड़गांव. हाँ, पहले हमने नोएडा से स्टार्ट किया हमारा वेयर हाउस. अच्छा, यू आर फ्रॉम नोएडा. हाँ, बट सारे कस्टमर्स दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव के नोएडा ही स्टोर करते थे. तो मतलब सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग करी? वो कैसे करी? खुद से, या फिर वो भी कोई पटियाला से उठा लाया? नहीं, वो तो थोड़ा बहुत सेट किया, लाइक समबडी हेल्प्ड अस. तो वो हेल्प किया, एंड देन स्टार्ट किया. सो इट वाज यू नो
पुटिंग everything on a canvas business model, सारे plugs किए एंड कोई पिच बनाई थी इन्वेस्टर्स के पास? इस बार भी नहीं गए तुम? अभी इन्वेस्टर्स के पास शुरू में नहीं गए. इन्वेस्टर मेरे फादर को बताना था कि मैं बिज़नेस स्टार्ट कर रहा हूँ. उनको बताने के लिए मैंने बनाया डेक कि मैं ये सोच रहा हूँ करने के लिए. शुरू में तो वैलिडेशन नहीं मिला कि भाई बिज़नेस में दम है नहीं, बट जैसे जैसे धीरे धीरे बनना शुरू हो गया तो लगा कि हाँ भाई. तो खुद का पैसा लगाया? हाँ, खुद का. पापा ने नहीं दिया कुछ? हाँ, मतलब उन्होंने थोड़ा बहुत किया, बट मोर लाइक अ स्ट्रैटेजिक थिंग. मतलब आई वॉज गेटिंग अ गुड सैलरी, मतलब मुझे 8-10 लाख रुपये महीना मिलता था, तो मैं निकाल सकता था पैसे. तो वो इन्वेस्ट किया और प्लेटफॉर्म बनाया. और पहले कस्टमर्स कैसे मिले? मतलब ये डिजिटल मार्केटिंग से ही आ गए? हाँ, ऑनलाइन, क्योंकि ये बिजनेस तो एग्जिस्ट करता ही है. हाँ, सो इट्स नॉट अ पुश, इट्स अ पुल प्रोडक्ट. तो उसके लिए जिसको ज़रूरत है वो आएगा. यू वर श्योर कि मुझे ये बिजनेस ही बनाना है क्योंकि तुमने देखा हुआ था? हाँ, देखा हुआ था, मुझे लग रहा था कि बनेगा. अब क्या हुआ ना कि इट्स अ $60 बिलियन की इंडस्ट्री है यूएस के अंदर. अब इंडिया में ये आना था, कोविड ने उसको एक्सेलरेट कर दिया, राइट. जो चीज़ 5 साल 10 साल के बाद आती वो आ गई एक साथ. बहुत लोगों को बहुत रिक्वायरमेंट. हाँ, तो अब जितने भी वर्किंग प्रोफेशनल्स थे तो उन लोगों को पता चला स्टोरेज नाम का कुछ कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट. कोविड में तो लोग घर छोड़ के जा रहे थे. रेंट छोड़े यहाँ का, अपने घर वालों के साथ रहें. पता नहीं 6 महीने लगेंगे, 1 साल होगा. श्योरिटी. मे बी हम उनके लिए तो एक हम उनके लिए एक बहुत ही अच्छे सेवियर थे कि भाई ऐसी कंपनी एग्जिस्ट करती है. Exactly, we were also born out of COVID and you were also kind of born in that sense and we went on Shark Tank together, which is also very interesting again. Nice. तो ऐसे तुम्हारा बिजनेस बनना चालू हुआ. तो नौकरी कितने बाद छोड़ी? तो नौकरी मैंने छोड़ दी ऑलमोस्ट 2021 में. और ये बिजनेस चालू किया था? मतलब मैंने 20 के एंड तक छोड़ दिया था, और फिर 21 में जब हम उसमें गए शार्क टैंक में तो हम तब छोड़ा. हाँ, तब तो नहीं, बट कंसेप्चुअलाइजेशन हाँ वो 20 एंड में शुरू कर दिया था, 20 मिड में शुरू कर दिया था. 6 महीने तक जॉब किया एंड देन योर वाइफ लेफ्ट एंड देन यू लेफ्ट. You left after how much time after your wife left? 6-7 महीना. तो 1 साल बाद छोड़ा तुमने, ऑलमोस्ट साल भर बाद तुमने नौकरी छोड़ी. वेरी इंटरेस्टिंग अगेन यार. ये भी एक ट्रिकी पार्ट होता है बहुत सारे लोगों. मुझे लगता है कि अगर आपकी अच्छी टीम है और आप अगर गाइड कर रहे हो, मतलब बिकॉज हो सकता है कि आई वॉज एट अ लीडरशिप रोल्स, आई कुड गाइड टीम को कि भाई कैसे करना है, क्या करना है, और मेरे टाइम देने से काम हो रहा है, तो अपनी कॉस्ट डाल के फ़ायदा नहीं है शुरू में. तो मुझे ऐसा लगता था. आई थिंक इफ़ यू कैन, लाइक इवन आई ऑलमोस्ट काइंड ऑफ फॉर 6 months till the time my product was not built, I was working, but at the same time the tech was building the product. I hired a few people, but that's a great strategy and people get scared of it. But I think if you are doing everything legally, then there's no problem of doing a side hustle, right? चाहे वो कॉलेज में करो या नौकरी में करो, and I think that's great. तो ये बिजनेस फिर चलने लगा और शार्क टैंक की कॉल आई, तुमने नौकरी छोड़ी. शार्क टैंक की कॉल भी बहुत इंटरेस्टिंग थी. हाँ, वो बताओ कैसे आया? ऐसा हुआ कि हम बैठे थे, सब लोग टीवी देख रहे थे, आप लोगों को ही देख रहे थे. आप मुझे बेसिकली सीजन 1 में देयर वाज लाइक एट द एंड दे ओपनड अप फॉर सम मोर टाइम, सो वी वर इन द स्पेशल एपिसोड. अच्छा, जो लास्ट में आया था उसमें 200 स्टार्टअप्स आए थे, उसमें से 5 सेलेक्ट हुए थे, हम एक. इट वाज एन एक्सटेंडेड वन. हाँ, जो ऐप पे उस पे भी आया था एंड उस पे सो वी वर ऑलरेडी आउट बाय दैट. हाँ, तो आप लोगों का आ रहा था आई थिंक. एंड देन हम बैठे हुए थे, डैड ने बोला कि भाई तुम बिजनेस बना रहे हो, यहाँ शार्क टैंक में पिच नहीं कर रहे. मैंने बोला उसके लिए तो प्लान करना पड़ेगा, फॉर्म वॉर्म भरना पड़ेगा, और सोचा नहीं था क्योंकि अभी तो चल रहा था काम, क्या ही फर्क पड़ रहा है. इधर से धीरे धीरे बना रहे थे. कोई यू डिडंट गो टू इन्वेस्टर्स. व्हाई? यू न्यू नाउ इन Cast24 कि मैं इन्वेस्टर्स के पास जाके नौकरी छोड़ के अपने बिजनेस को वैलिडेट कर सकता हूँ. हाँ, बट जॉब छोड़ना एक अच्छे स्केल पे आने के बाद टफ होता है. अगर वो शार्क टैंक नहीं होता तो हो सकता है मैं तब भी ओह, यू वर स्टिल स्कैर्ड इवन आफ्टर बिल्डिंग वन बिजनेस. तो नौकरी, क्योंकि मतलब जो एंटरप्रेन्योर माइंडसेट है वो रिस्क टेकर का है, एंड यू वर स्टिल बीइंग वेरी कॉशियस व्हाइल यू वेंट ऑन Cast24 टू लर्न द रिस्क टेकिंग ऑल्सो. तो क्या अभी भी डर लग रहा था? डर नहीं था, मुझे ये लग रहा था कि अभी थोड़ा और रेवेन्यू बिल्डअप कर सकते हैं, बिकॉज मैं जो वैल्यू ऐड कर रहा था सिस्टम के बाहर से वो मोर स्ट्रेटेजिक था, मोर रिलेशनशिप और गेटिंग द क्लाइंट्स एंड अदर थिंग्स. बट अब जो हम बैठे, हमने टीवी देखा, एंड देन मेरे डैड ने बोला कि भाई तुम लोग क्यों नहीं अप्लाई कर देते. तो उस दिन मैंने रात को बैठ के, आई थिंक 17 पेज का फॉर्म था, आई डोंट रिमेंबर, वो भरा.
और वो भरने के बाद उनकी 10-15 दिन के बाद एक कॉल आई, मेल आई, एंड देन उन्होंने बोला शार्क टैंक ने कि आप को शॉर्टलिस्ट किया है आप लोग, एंड देन वो मेल भी एक पुरानी डेट की थी, मुझे लगा फेक होगा, OTP मांग रहा था, मैंने बोला OTP देंगे नहीं, 2-3 दिन तक तो मैंने ऐसे ही टरका दिया कि कि भाई नहीं करना हमें, एंड आई थॉट इट्स अ फेक्स, एंड आई रीच्ड आउट, एक्सटेंडेड एडिशन है, आई रीच्ड आउट समबडी ऑन लिंक्डइन इन सोनी, एंड देन हाँ वैलिडेट किया, हाँ बोला ठीक है, हाँ ये जेन्युइन है, आप करो। तो फिर ये किया। अब हमारा एपिसोड भी जो था वो कोविड के टाइम पे था, तो उन्होंने एक वर्चुअल किया, ऑनलाइन किया, देन उन्होंने बुलाया हमें बॉम्बे, सो पूरा एक होटल के अंदर रखा, आइसोलेटेड, बिकॉज कोविड के टाइम, नियर द जुहू बीच। हाँ, नियर द जुहू बीच। तो वहाँ पे हमने पिच किया ना, आई थिंक द शार्क टैंक हाउ इट वर्क्स। तो ये सेकेंड एडिशन मतलब जो भी एक्सटेंडेड था वहीं अपना फिल्म सिटी गए, और मतलब वहाँ भी बहुत सारे स्टार्टअप्स थे, जैसे मतलब स्पेशल उसमें भी सेम ही होगा, मतलब और भी स्टार्टअप्स थे। हाउ मेनी एयर्ड इन दैट? 6 लोग थे जिन्होंने किया, उनमें से 5 एयर हुए। एंड हु वर द शार्क्स? तो उसमें अश्विन नहीं था, बाकी सब लोग थे, पीयूष, अमन, देन नमिता, अनुपम, एंड देन नमिता। समझ में आया सबको? हाँ, सबको समझ में आया। आई थिंक पीयूष को समझ में आया अच्छे से, बिकॉज पीयूष ने पूछा कि भाई अगर Cast24 के फाउंडर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं करूँगा। अच्छा, यू गॉट द कमिटमेंट फ्रॉम द Cast24? नहीं, तब नहीं मिली थी। बट यू सेड दैट ऑन द शो? नहीं, हमने नहीं बोला। तो पीयूष ने बोला कि तुम तो भाई खेले हुए हो, मार्केट में जानते हो सबको, इन्वेस्टमेंट तो रेस कर लो। तो Cast24 के फाउंडर से नहीं लिया। मैंने बोला अभी तो पिच ही नहीं किया उनको, अभी तो पहली बार तो पिच करने आए हैं आपको। ऐसा नहीं बोला रितेश से क्यों नहीं लिया? ओयो में भी तो नहीं, रितेश तो था नहीं उस वक्त शार्क्स में, फिर भी। हाँ, नहीं, रितेश मतलब has become, obviously he was popular then, but Shark Tank में आने के बाद ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं। But you didn't have access to Ritesh? I had, I mean I still have, मगर मैं I was close to, जो होता है ना स्टार्टअप के फाउंडर्स के साथ आप 0 to 1 वाली जर्नी करते हो तो आप क्लोज होते हो। वो तो $10 billion ऑलरेडी था ओयो उस टाइम पर। तो फिर उन्होंने बोला कि भाई आप करेंगे तो हम करेंगे। तो अच्छा, उन्होंने he said that on the show? हाँ, उन्होंने नहीं, वो कट करवा दिया था। And that's how you got the idea? नहीं, वो तो प्लान था कि करेंगे, बट वो आई वांटेड टू मेक श्योर कि एक एंटिटी बन जाए, लीगली सारी चीज़ें हो जाएं, उसके बाद जाएंगे मार्केट में। अभी जल्दी नहीं थी, आई कुड सस्टेन एंड इट वाज ओके। ब्रेकिंग इवन कर रहे थे तो ब्रेक इवन था, तो ऐसा किया फिर। तो दिस वाज एक्चुअली योर फर्स्ट एंजल पिच, शार्क टैंक? उससे पहले किसी इन्वेस्टर को पिच नहीं किया? तो वो किया, इंटरेस्टिंग था। और फिर उसके बाद काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली। बिजनेस कितना बड़ा है यार शार्क टैंक पे, क्योंकि तुम्हारा बिजनेस तो बढ़ सकता है, और नेशनल दिखाया तुमने। तुम नेशनल तो नहीं होंगे तब? नहीं, हम खाली NCR केटर कर रहे थे। हाँ, तो हम मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि बड़ा, मतलब हमारे फॉलोअर्स बड़े, सारी चीज़ हुई, बट बिजनेस बड़ा, कस्टमर्स आए, मे बी 30% ऑफ इंस्टेंट ग्रोथ वी गॉट इन दैट पर्टिकुलर। सारी रिक्वेस्ट तुमने रिजेक्ट भी करी होगी? हाँ, मतलब बिकॉज कैपेसिटीज एंड एवरीथिंग। नहीं, सिर्फ NCR के बाहर की लीड्स भी आ रही थी? सारे मेट्रो स्टेशन जहाँ पे भी वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद एंड पुणे, सब जगह से आती है। दिमाग में क्या चल रहा था शार्क टैंक पे जाने से पहले? क्योंकि ये लड़का अभी नौकरी छोड़ रहा है, शार्क्स को पिच कर रहा है। इफ द डील वुड हैव हैपेंड और इट हैपेंड, तो मतलब इंटरेस्टिंग ये हुआ, ये स्टोरी है। मतलब हम फ्लाइट में थे एंड कोविड का टाइम था, एंड आई वाज लाइक नर्वस, ऑनेस्टली नर्वस इतना था कि भाई आई वाज लाइक फ्लाइट के अंदर आई फेंटेड, एंड एसेंशली वहाँ पे 2 डॉक्टर्स थे जिन्होंने मेरा पल्स देखा और बोला कि भाई ठीक है, थोड़ा सा नर्वस है, एंड देन ठीक है, इट वाज गुड, और ठीक है, सही हो गया, सारी चीज़ें अच्छी हुई। फिर हमें डील मिली। उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग ये हुआ कि हमें काफ़ी बड़ी लॉजिस्टिक्स कंपनी, मैं नाम नहीं लूँगा, उनका ऑफ़र आया कि भाई उनके फाउंडर मिलना चाहते हैं, ट्रेडिशनल, एंड उन्होंने बुलाया ताज होटल में। ये शार्क टैंक के बाद? शार्क टैंक के बाद दिल्ली के ताज होटल में बुलाया, अपने प्राइवेट इक्विटी के साथ, कोई एंड कि हम सोच रहे हैं कि आपको एक्वायर करना चाहते हैं। तो हमने बोला अभी तो स्टार्ट किया है करना, आई थिंक इट वाज टू अर्ली। जस्ट आफ्टर शार्क टैंक अभी तो शुरू हुआ था। 300 कस्टमर्स तो मतलब ठीक है उनका था, मतलब तो ठीक है, मतलब आई थिंक अच्छी चीज़ें हुई। कुछ कंपनीज़ के आए, कुछ रियल एस्टेट कंपनीज़ के ऑफर आए, सो आई थिंक जो हमारा प्रॉप टेक कह लो, इसको कंज्यूमर टेक कह लो, सो सारे जो
लोगों का इंटरेस्ट था वो आना शुरू हुआ. कुछ लोग बड़ा टिकट साइज देना चाहते थे, हम इतना बड़ा लेना नहीं चाहते थे और मे बी डाइल्यूट नहीं करना चाहते थे बिकॉज तो ग्रेजुअली बिल्ड किया, धीरे धीरे पैसे रेज किए और एज एंड व्हेन. नहीं बट शार्क टैंक पे तो डील हो गई थी. हाँ हो गई थी. जब डील जो टीवी में हुई थी उसके बाद रीनेगोशिएशन कुछ हुआ या वो फाइनल था? क्योंकि डील के बाद वाला प्रोसेस मुझे नहीं पता. व्हाट हैपेंड आफ्टर द डील? तो डील मतलब तुम्हारी शार्क टैंक पे बोला चलो हम दे रहे हैं कितना, 50 लाख, है ना? एट 4% इक्विटी, 50 लाख डेट एट 12% इंटरेस्ट. डेट नमिता ने तो नहीं डाला था, पीयूष और नमिता का था, दोनों मिलकर. तुमने 1 करोड़ मांगे थे तो उन्होंने कहा चलो डेट कर लेते हैं तब तक. ठीक है, वेरी नाइस. डेट ले लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? लोगों को ये भी बड़ा कंफ्यूजन. नहीं, आई थिंक उनको हम चाहते थे कि इक्विटी राउंड ही करें, बट दे वर वांटेड टू गिव डेट. सो हमने ऑन स्क्रीन तो उन्होंने बोला आप ले लो, नहीं लेना होगा तो मत लेना आप, राइट. सो दैट वाज द डील बिकॉज अगर आपने 1 करोड़ का आस्क किया है तो आपको पूरा पैसा वो देते हैं, चाहे डेट कंप्लीट करना पड़ता है एज पर द रूल. ये आई थिंक यूएस में भी बहुत अच्छे से करते हैं मिस्टर वंडरफुल. अच्छा, तो ये बताओ कि फिर डील क्यों नहीं हो पाई फाइनली? मतलब तुमको पिच हो गया, उसके बाद यू स्टार्टेड अप्रोचिंग अदर इन्वेस्टर्स. हाँ, तो हमने और इन्वेस्टर्स को अप्रोच किया, करना शुरू कर दिया. नाउ यू वर इनटू द एंजल मोड कि अब मैंने नौकरी छोड़ दी है तो अब मैं इन्वेस्टर्स के पास जाता हूँ. ओके, कैसे किया? तो देखो, शार्क में ज़रूरी नहीं है कि सारी जो पिचेस होती हैं ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन भी वो ऑनर करते हैं, राइट. लाइक लॉट ऑफ डील्स फॉल आउट. मतलब फॉल आउट जस्ट नॉट बिकॉज कि डीडी नहीं है, डीडी तक तो पहुंचे ही नहीं. तुम्हारी डीडी नहीं हुई थी? नहीं. अच्छा. सो बेसिकली इट्स मोर लाइक आई थिंक सीजन 1 में यू वुड नो कि हाउ इट वर्कड. मतलब कैसे? मेरे को नहीं पता सीरियसली, बिकॉज आई एम टोटली नॉट अवेयर कि जैसे डील फॉल आउट के रीज़न क्या हो सकते हैं. रीज़न कुछ भी हो सकता है. मतलब हमने फॉलोअप लिया था बट एसेंशली दे वर काइंड ऑफ बिजी एंड वी वर बिल्डिंग द बिजनेस. तो आई थिंक उस स्टेज तक हम पहुँचे नहीं कि डीडी हो और सारी चीज़ें हों. एंड उस टाइम में हमारे को दूसरे इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट आने शुरू हो गए थे. तो इट वाज काइंड ऑफ म्यूचुअल बोथ साइड कि भाई हम भी अपना कर लेंगे, आपको नहीं करना है तो लाइक यू नो इट्स ओके. ओके, तो दैट्स हाउ द फॉल आउट हैपेंड. तो डीडी वगैरह भी नहीं हुई, कोई पेपर वर्क कुछ नहीं हुआ. बट ऐसा होता है जैसे आपको चेक जो लिख के देते हैं उसके बाद कोई फॉर्मल डॉक्यूमेंट भी होता है उसके बाद, या फिर इट्स जस्ट यू गो होम? अच्छा, मतलब इफ द डील हैज़ हैपेंड ऑन द कैमरा, आफ्टर दैट nothing, there's no meeting after that, just after Shark Tank. उनकी टीम से कनेक्ट करते हैं लोग टिपिकली. तो कौन कनेक्ट कराता है? दोनों इन्वेस्टर्स की टीम से लोग कनेक्ट करते हैं. दैट्स व्हाट आई हैव हर्ड. तो थोड़ा बहुत कनेक्ट हुआ बट देन यू नो इट्स ओके. थोड़ा बहुत चला, स्लो चला, बहुत फॉलोअप्स लगते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, यू नो. सो डिपेंड्स. तो फिर हमने बोला कि इतना टाइम हम अपने बिजनेस में लगाएंगे और चीज़ें करेंगे और इवेंचुअली हमने बिल्डअप किया और बिजनेस बढ़ाने लग गए. तुमने कहा यार खुद ही का पैसा लगा रहे थे या कुछ फंडिंग कर ली? नहीं, खुद का पैसा था एंड वी वर नॉट ब्रेकिंग. हम लॉस नहीं कर रहे थे बेसिकली. तो इट वाज गुड. बट यार अगर जैसे यू लेफ्ट योर जॉब बिकॉज ऑफ शार्क टैंक कि मुझे डील मिल जाएगी, मोटा मोटा मैं अब धंधे में कूद गया हूँ, डील मिल गई, आई एम श्योर यू वुड बी वेरी हैप्पी. बट स्ट्रेस हुआ अगर डिले हो रहा था तो? मुझे लगता नहीं कि स्ट्रेस हुआ. मुझे ऐसा लगा कि पैसे उठाने के लिए एफर्ट मारना पड़ता है. देखो हर इन्वेस्टर को अब तो इजी लगता है कि हाँ एक लेवल पे आने के बाद की नहीं, हमेशा डिफिकल्ट ही लगेगा. मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत आसान था. हाँ, मल्टीपल इन्वेस्टर्स को रीच आउट किया, समझा. क्या एंजल्स को रीच आउट करना शुरू कर दिया? रीच आउट किया. क्या बोला? ये बोला कि शार्क टैंक की डील मिल गई है? मिल तो गई थी. अच्छा वैलिडेशन भी अच्छा वैलिडेशन आ गया था. तो फिर हमने फाउंडर्स से रेज़ किया, Cars24 के फाउंडर्स, पेपरफ्राई के फाउंडर्स, और फिर CXOs से रेज़ किया, एक और होटल्स एंड यू नो. दिस वाज हाउ बिग अराउंड दैट? 500,000. ग्रेट. एंड फिर टीम बनानी शुरू करी? टीम बनानी, हाँ, थोड़ी मिड सीनियर काइंड ऑफ पीपल, नॉट ओवरबर्डन बट ठीक है, वो ओवरबोर्ड नहीं हुए बट आई थिंक ठीक है. वी स्टार्टेड बिल्डिंग द टीम. आइडिया तो चल रहा था, कस्टमर्स आ रहे थे. उस आइडिया को कितना बड़ा बना सकते हैं वो इंपॉर्टेंट है, राइट. तो आइडिया एक हमारा जो जर्नी है ना स्टोर माई गुड्स का, हम ये कहते हैं कि एक स्टूडेंट को भी स्टोरेज चाहिए, एक वर्किंग प्रोफेशनल को भी चाहिए, एक मैरिड कपल को भी चाहिए,
एक डाइवोर्स कपल लाइक उनको भी चाहिए, देन एसेंशियली आ जाते हैं. इफ़ यू आर स्टार्टिंग योर जर्नी एज एन एंटरप्रेन्योर 0 to 1 वाली जर्नी बना रहे हो, तब भी आपको स्टोरेज चाहिए, बिकॉज आप श्योरिटी नहीं है कि भाई मेरा कितना धंधा चलेगा, सीजनल है नहीं है, राइट. देन हम B2B बिजनेस भी हमारा 25 से 30% कंट्रीब्यूट करता है. तो हम काफ़ी सारे बैंक्स के साथ काम करते हैं, लाइक वी वर्क विद कोटक बैंक एंड मल्टीपल अदर बैंक. नॉट फॉर दैट, वो भी चलता है, बट बैंक्स काफ़ी कंपनीज या लोगों को लोन देता है एंड वो NPO हो जाती हैं बिल्डिंग्स, राइट. अब NPO होने के बाद दे हैव टू सेल दैट एसेट. उसको बेचने के लिए उनके पास जो सामान होता है उनको स्टोर करना पड़ता है लीगली, राइट, फॉर 3 months 6 months एंड ऑल. इट्स अ बिग प्रॉब्लम. सो वंस यू पैनल अक्रॉस इंडिया, आप स्टोर करते हैं उनके लिए, एंड इट्स अ गुड बिजनेस. इट्स अ रेकरिंग बिजनेस. इट्स अ रेकरिंग बिजनेस. देन तो कितना B2B है अभी धंधा? अबाउट 25-27% B2B है. एंड हाउ बिग इज द टीम? हम अभी 70 plus. 70. Who was the first hire? अब तुमने नौकरी छोड़ी. Who was the first hire? Interesting. So this first hire person was working with me in one of the companies, and he's a operations guy, and उनको hire किया हमने. He was our first employee, and मैं उनको बोलता हूँ he will be our last employee. क्या बात है, कैसे मिला उनसे? तो एक F&B कंपनी में वो काम करते थे और F&B में कनेक्ट अच्छा था, तो आई हैव सीन हिज ऑपरेशन कैपेबिलिटीज़ एंड सारी चीज़ें. तो हमें चाहिए थे कि भाई जो ऑपरेशंस मैनेज कर ले, बिकॉज वो मेन काम था उस वक्त, राइट. बाकी चीज़ें तो दैट वाज योर फर्स्ट हायर? दैट वाज माय फर्स्ट. कैसे, मतलब इंटरव्यू लिया या? नहीं, उनको जानता था. हाँ, कोविड में उनका ही वॉज नॉट वर्किंग बिकॉज F&B का तो जॉब चल, सो थोड़ा सैलरी कम करके वी हायर्ड हिम बिकॉज एटलीस्ट ही वुड बी एबल टू स्टार्ट वर्किंग विद अस. And gradually we got him to much higher level of what he could earn, and तो that is जैसे start किया. उसके बाद फिर कुछ लोग धीरे धीरे करने शुरू किए हायर और बिल्ड किया. और शार्क टैंक के ऑलमोस्ट 1 year बाद तुम्हारा राउंड क्लोज हुआ फिर, है ना, 1 साल बाद. तब तक खुद से खींचा धंधा. हाँ, मतलब खींचे, कुछ चीज़ें इम्प्रूव करनी थी, प्रोडक्ट इम्प्रूव किया पूरा, सो अभी तो एक कस्टमर का जर्नी होता है, उसके बाद पीछे एडमिन पैनल्स, लॉजिस्टिक्स, वेंडर बिडिंग डैशबोर्ड, बहुत सारी चीज़ें हैं जो पूरे इकोसिस्टम में बनाई. वेरी गुड यार. और फिर बिजनेस को स्केल कर रहे हो अब, 75 पीपल, 300-350 कस्टमर अब महीने के आ रहे हैं शार्क टैंक पे. तब उतने ही थे टोटल. वेरी इंटरेस्टिंग. सो शार्क टैंक पे जाना चाहिए लोगों को? आई थिंक जाना चाहिए. मतलब कुछ यू हैव नथिंग टू लूज. मतलब आप नहीं जाओगे तो आप एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो, मुझे ऐसा लगता है. बिकॉज जो क्रेडिबिलिटी आपको मिल सकती है, जो माइलेज आपको मिल सकती है, और जो एयर टाइम आपको मिलता है, दैट इज़ फॉर लाइफ, राइट. मतलब मैं आपके पास बैठा हूँ इसलिए क्योंकि हम शार्क टैंक पे थे, राइट. एंड द शो इज नाउ पोस्ट द टैंक. इन्वेस्टर से मीटिंग मिल जाती हैं, इनिशियली थोड़े टाइम तक काम करता है, बट देन धंधा ही बोलता है. मतलब आपकी मेट्रिक्स सही हैं, सारी चीज़ें सही चल रही हैं, तो बाद में तो वही है, बट शुरू में इट बिकम्स ईजी, राइट. तो आई थिंक कितना बड़ा बन सकता है ये बिजनेस? हमारा जो एस्टिमेट है इंडिया में, ईजिली हम इसको 1000-1200 करोड़ तक का धंधा बना सकते हैं इन द B2C एंड B2B सेगमेंट्स. B2 से बड़ा जो अभी मार्केट प्लेयर है वो कितना बड़ा है? सो इट्स अ ब्रोकन मार्केट, मतलब कोई एक बड़ा नहीं. हाँ, सो जैसे काफ़ी ट्रांसपोर्ट कंपनीज हैं, दे हैव ऑल्सो अनऑर्गेनाइज स्टोरेज. मतलब आपने देखा होगा, ये सब हो गए, तो ये लोग भी स्टोरेज करते ही हैं, राइट. बट कंट्री साइड में जाके, आउटसाइड, तो इट्स नॉट अ कन्वीनियंस. मतलब अगर हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं तो सारे सोसाइटीज़ में रहते हैं, और ये सब फ्रॉम द VCs ऑफ द वर्ल्ड टू फाउंडर्स टू एनीबडी, मतलब जो 10 लाख रुपए साल का कमाता है से लेके वट एवर. सो वी ट्राई टू गिव कन्वीनियंस, एंड वी आर ट्राइंग टू बी अमेजॉन ऑफ दिस इंडस्ट्री और ऊबर ऑफ सो वी वांट टू. किसी को भी स्टोर करना है, हाँ, सो एक बॉक्स भी कर लेते हो? एक बॉक्स भी कर लेते हैं. सो 100 रुपये पर मंथ. हाँ, तो मतलब हमारा मिनिमम प्राइसिंग 500 रुपये से स्टार्ट होता है, बट टिपिकली लोग 2-3-4 चीज़ें तो स्टोर करते हैं. स्टूडेंट्स काफ़ी बड़ा बिजनेस है, मतलब इन US में तो काफ़ी बड़ा है. भाभी ऑफ लेट वी हैव स्टार्टेड गेटिंग कि भाई यूनिवर्सिटी में 2-3 महीने की छुट्टी होती है, सो आर आई मीन लाइक 20-30 स्टूडेंट्स वुड कम एंड स्टोर विद अस एट एवरी यूनिवर्सिटी. और वो तो आई थिंक वहाँ से स्टार्ट होता है और ओल्ड एज तक चलती हैं चीज़ें. कभी रोए हो लाइफ में? आई थिंक रोना इज़ मोर लाइक, मतलब यू गेट स्ट्रेस्ड आउट, एंग्जाइटी होती है और प्रेशर भी होता है. मतलब प्रेशर इज़ लाइक, मुझे लगता है स्टार्टअप एक
ट्रेन का डब्बा है, मतलब यू नो लाइक ट्रेन है एंड डिफरेंट पीसेज हैं. एक इंजन है, सेकंड बोगी है, थर्ड है, यू नो लाइक फाइनेंस, मार्केटिंग, सेल्स, ऑपरेशंस. फाउंडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि भाई सारे इंजन सही तरीके से चल रहे हैं तो अच्छा चलेगा. नाउ फंडामेंटल इज़ कि एटलीस्ट फ्रॉम अ फंडिंग साइड यू शुड बी कवर्ड फॉर, मुझे लगता है अगले 3 साल का आपके पास पैसा बैंक में हमेशा होना चाहिए एज अ फाउंडर, और वो इम्पॉर्टेंट है सबसे आई थिंक एक एट सम पॉइंट ऑफ टाइम. एंड देन आप चीज़ें स्ट्रक्चर करो, टीम बिल्ड करो. यू नो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि शुरू में जब आप स्टार्ट करते हो बिजनेस तो सारी चीज़ें खुद करते हो. दूसरे तीसरे साल में आपको लगता है कि लीडरशिप डेवलप करो, राइट. लाइक वन जब आप लीडर डेवलप करोगे तो आपसे ज़्यादा बेटर लोग सोच सकते हैं. आई थिंक तुम्हारी ट्रेन की बोगी का एग्जाम्पल दूँ तो आई थिंक फाउंडर की जर्नी ट्रेन के डब्बे में ऐसे है कि जब स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहला वाला इंजन आप हो, और फिर धीरे धीरे आप पीछे आओगे, आप बैलेंस करोगे, फिर वो आखिरी में ना वो स्पाइडरमैन वाला भी आपको ट्रेन का करना पड़ेगा. एंड यू हैव टू गेट द बैक कि सब सही चल रहा है नहीं चल रहा है. दैट्स द स्टार्टअप की ट्रेन की बोगी. बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो. बिकॉज एक भी डब्बा पटरी से उतरा तो यू नो यू विल हैव नाइटमेयर्स. लाइक काफ़ी होता है कि रातों को नींद नहीं आ रही, यू नो फाउंडर जर्नी मतलब. बट ऐसा क्यों? प्रेशर क्या है? सबसे बड़ा प्रेशर क्या होता है स्टार्टअप का? हर टाइम का अलग प्रेशर होता है. मतलब कभी जब फंड्स रेज करने होते हैं तो फंडिंग का प्रेशर होता है, कभी टीम में कोई मोटिवेशन चाहिए, कभी सेल्स ड्राइव करनी है, सेल्स नहीं हो रही तो सेल्स का प्रेशर है, एम्प्लॉयज़ को यू नो ग्रोथ पाथ जर्नी दिखानी. इन्वेस्टर्स का कोई प्रेशर होता है? देखो हमें लगता है कि अभी इन्वेस्टर्स का प्रेशर, अगर आपके नंबर्स ठीक हैं और ग्रोथ हो रही है, यू नो अगर 50-60% बोर्ड में है प्रेशर ऐसा? अभी वी आर टू अर्ली. हाँ, वी आर टू अर्ली टू गेट दैट प्रेशर. आई थिंक प्रेशर इज़ इंटरनल. हम अपने AOPs बनाते हैं, AOPs को हम क्वार्टरली ब्रेक करते हैं, फिर मंथली ब्रेक करते हैं, फिर वीकली ब्रेक करते हैं, और उसके बेसिस पे टॉप ऑफ द फनल से शुरू करते हैं, कोशिश करते हैं, और वो प्रेशर बिल्ड करते हैं हम ही, और वो प्रेशर हमारे ऊपर भी ऑफिस आता है. करेक्ट. वो चलता रहना चाहिए. वो चलता रहना चाहिए. वो नहीं है तो फिर आप डेविएट हो जाओगे. करेक्ट. मज़ा स्टार्टअप में प्रेशर का खुद से ही लेने का है. तुम ये बताओ कि एज अ हस्बैंड वाइफ करना चाहिए स्टार्टअप, नहीं करना चाहिए, क्यों किया तुमने? हाँ, तो बहुत इंटरेस्टिंग है ये. आई थिंक इस पर तो काफ़ी किताबें लिखी जा सकती है. सो देखो, अब एक तो हस्बैंड वाइफ ऑन इन द वर्क, आउटसाइड द वर्क, राइट. सो पहले तो व्हाट डू यू ब्रिंग ऑन द टेबल. कितने साल की शादी के बाद स्टार्टअप किया साथ में? 5.5 साल 6 साल. हाँ, तो हाँ मतलब मैं स्वाति को जानता स्कूल टाइम से था. तो यू नो सो कॉम्प्लीमेंट, जो स्किल सेट आपके अगर अच्छे दोनों के डिफरेंट हैं तो आपको लगता है कि कॉम्बिनेशन बन सकता है. शी वॉज अ लॉयर, सो एटलीस्ट फ्रॉम द लीगल स्टैंड पॉइंट, बिकॉज हर बिजनेस के न्यूएंसेस होते हैं. वो लीगल फ्रेमवर्क में आप कैसे चीज़ों को. नहीं, तुम बता रहे थे कि हस्बैंड वाइफ को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. सो देखो, वो तो $1 मिलियन क्वेश्चन है. अभी तो 3 साल हुए हैं साथ में. अब थिंग्स हैव शेप्ड अप वेल. शुरू के 1 साल 1.5 साल में तो काफ़ी वेवलेंथ के इश्यूज आते हैं. बिकॉज आप सोच रहे हैं, बिकॉज आई हैव बीन कि मेरे तो बिजनेस बनाना है, जो होगा बाद में देखा जाएगा, पहले यू नो फोकस ऑन धंधा. उसका माइंडसेट है कि भाई लीगल फ्रेमवर्क में काम करना है, कुछ भी ऐसा नहीं करना जो कि गलत हो, या फिर सो डोंट टेक द बेट्स विच यू कांट पे ऑफ, यू नो. So that is always the case, because I would try to fly high and she would like to control things, because that is important sometimes. तो and that is why कि मुझे भी लगता है कि हमारा you know पूरा legal system is very structured. But you're happy with it or not? I'm happy. But that's you're saying कि वो मुझे खींच रहा है नीचे, मैं तो उड़ना चाहता. नहीं, वो ठीक है. वो I think important है, because अब एक बार आपका template सारी चीज़ें बन जाती हैं, then you can fly. तो is it balancing as husband wife working together, or stressful or fun, or? तो देखो, शुरू में तो expectation setting is important, कि आपको क्या चीज़ क्या करनी है, एंड देन कौन सी चीज़ नहीं करनी है, राइट. बिकॉज अगर आप बिजनेस को डिस्कस कर रहे हो तो ऑफिस में करें, घर पे करें, लिमिटेड करें, बट यू कांट अवॉइड इट, राइट. यू विल एंड अप डिस्कसिंग दैट एवरी टाइम, इवन ऑन द डिनर टेबल, एवरीवेयर, यू नो. एंड हमारी
family में like you know everybody is doing some businesses, right? Like It even goes to the bedroom, man. yes, definitely. So I think वहाँ पे बहुत important है कि आप जो कर रहे हो और जो आपके partner कर रहा है उनका skill set अगर दोनों का different है तो you should take and respect that. But you guys were able to do that, or there were conflicts? कॉन्फ्लिक्ट रहे 1.5 साल तो कॉन्फ्लिक्ट रहे, बिल्कुल रहे. हाँ मतलब But did that affect the personal life a bit? होता है. मतलब आपको देखो, मतलब मैंने स्टार्टअप में ही काम किया है, मैंने फाउंडर्स को देखा है क्या सोचते हैं क्या करते हैं, एंड अगर कोई लीगल फ्रेमवर्क से आता है तो यू नो सारी चीज़ें प्लान करनी पड़ती हैं कि कैसे करना है, क्या करना है, कौन सी चीज़ नहीं करनी है. सो वो रहता है विच इज़ फाइन. अगर मैं बोलूँगा एक सुदीप एक और होता फॉर एग्जाम्पल सेम सोचता तो वो एक ही चीज़ सोच रहे होते, राइट? तो आई थिंक दैट इज़ फेयरली गुड बिकॉज नाउ back end of the business, managing the business now, which I focus on getting new business or the product side. On the back side of the quality or the contractual part or secretarial part or the HR or finance, वो सारी चीज़ें वो handle करती है. Correct. Interesting. तो यार स्टार्टअप की जर्नी में मज़ा आ रहा है. अब अगला तुम नौकरी करोगे या स्टार्टअप ही करते रहोगे? तो बिजनेस ही करना है. सो देयर इज नो लुकिंग बैक. एंड नाउ यू सेड यू रेजिंग अनदर राउंड. हाँ अभी हमने कर लिया है, आधा राउंड कंप्लीट कर लिया. वी गॉट द मनी. तो बैलेंस होपफुली विल बी. सो दिस टाइम यू विल गेट चेक्स फ्रॉम द एंजल्स? It's a family office, so we raised money from them. It's a big logistics company. So is it like a larger stake given to them? Yeah. So among all the investors, they have. But minority. Minority. And कितना investment लिया है? अभी मतलब close to $1 million types चल रहा है. Is what you're looking to raise and adding more. If there are angels who will watch this podcast, they can approach you this time. Even Piyush and Namita, if they want to come this time. You as well. No. I'll definitely look at this. Huh? Sure. Let's do that. But interesting, man. एक business idea बताओ जो अगर तुम नहीं बना रहे हो, anyways, you're building Store My Goods, तो कोई जो ये podcast देख रहा है वो बना सकता है. हाँ, तो बहुत सारे business ideas हैं. चलो 2 बताओ. एक जो 5 लाख के अंदर शुरू हो सके और एक दूसरा जो तुम्हारा बहुत बड़ा भी हो सकता है. आइडिया एक आई थिंक एक तो आइडिया विच आई लाइक करंटली जो चल रहा है और मतलब आई डोंट नो, आई हैव नॉट डन लॉट ऑफ स्टडी बट लैब ग्रोन डायमंड्स इज ग्रोइंग, जो कि रिप्लेस कर रहा है डायमंड्स को. एंड वो काफ़ी इंटरेस्टिंग आइडिया बन सकता है और बनेगा. सो एक तो वो है. बट कमिंग बैक टू अभी मैं मॉर्निंग में कुछ स्टूडेंट्स की पिचेस सुन रहा था एंड एट एशियन बिजनेस स्कूल नोएडा में. तो वहाँ पे कुछ आइडियाज़ थे अच्छे जो मुझे रिलेटेबल लगे. और उसमें एक आइडिया था कि भाई जो घर का वेस्ट होता है, जब आप घर बनाते हो, अपना घर बनाते हो, घर का जो वेस्ट होता है, चाहे सीमेंट हो या फिर लकड़ी हो, पूरी बिल्डिंग बनाओगे तो कुछ ना कुछ बच जाता है जो आप बिल्डिंग के ऊपर रख देते हो, अपने ऑफिस के या घर के ऊपर रख देते हो, और एसेंशियली वो यूज़ नहीं होता, आप 3 महीने 6 महीने में फेंकते हो, राइट? सो ऐसा क्यों प्लेटफॉर्म नहीं बनाया जाए जहाँ पर आप सारी चीज़ें एट अ थ्रो अवे प्राइस कलेक्ट करो और एक काइंड ऑफ मॉडल में लेके जाओ जहाँ पे प्लेटफॉर्म जहाँ पे वॉट एवर इज़ अनयूज्ड स्टफ ऑफ इंडस्ट्रियल और रॉ मटेरियल ऑफ हाउस कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, और आप उन लोगों को दो जिनको वो चाहिए, चाहे वो 4 कट्टे सीमेंट के हो या फिर एक्स्ट्रा बचा हुआ एट तो आपकी आज की तारीख में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट काफ़ी बढ़ गई, वो वेस्ट चला जाता है. एंड देन टू इंटीग्रेट दिस वेयर हाउसिंग अगर हम करते हैं, स्टोर करें और एक पूरा एक सेक्शन बनाएं जैसे कि ग्रोसरी स्टोर है, आप जाएं वहाँ पे पूरा सीमेंट के पाइल्स हैं, देन यू हैव ब्रेक्स और वट एवर इज़ लेफ्ट ओवर, एंड देन पीपल कम एंड टेक स्टफ फ्रॉम देयर, वहाँ से लिया और उन्होंने चेकआउट किया. तो वो एक रहता है कि गुड़गांव के अंदर 1000 घर बन रहे होंगे, कुछ ना कुछ तो बच रहा होगा. अब वो फेंकना ही पड़ता है और आपको डिस्पोज ऑफ करने के लिए भी कॉस्ट देनी पड़ती है. इट्स मोर लाइक
scavenging business only, but of a refurbished or waste man. वेस्ट मैनेजमेंट फॉर इंडस्ट्रियल और दिस थिंग. तो मुझे लगता है कि इसमें काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है. क्योंकि आप एक तो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो और आप लोगों को कंस्ट्रक्शन मटेरियल मे बी 50% ऑफ द प्राइस पे दे रहे हो. तो आपकी जो बिल्डिंग 2 करोड़ की बन रही है, 3 करोड़ की बन रही है, वो कम में बन सकती है अगर आप डिमांड और सप्लाई बना सकते हो. और वो प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहे हो, वेस्ट की भी कर रहे हो कि मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा वो फेंकना, उसको 50% पैसे भी मिल रहे हैं, एंड देन यू कैन हैव अ गुड मार्जिन. एंड इट्स अ बिग प्रॉब्लम. इंडिया में प्रॉब्लम आएगी और बिकॉज कंस्ट्रक्शन होगी, ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो अगले 10-20 साल का धंधा है. तो अगर आप अच्छे से बना सकते हो, डिमांड सप्लाई कर सकते हो, तो एंड नोबडी इज डूइंग दिस. nobody is doing this. Nice. So good business idea from Sudeep, our Shark Tank guy with an amazing start. I heard it from one of the guys and I loved this idea. So हाँ, very nice. नहीं, अच्छा आइडिया यार, अच्छा आइडिया. ग्रेट यार. तो स्टार्टअप की जर्नी में सबसे टफ क्या लगा अभी तक? टफ देखो, डिसिप्लिन है. डिसिप्लिन अगर आप रखते हो अपने आप को, वो सबसे इम्पोर्टेंट है. मतलब आपके लिए हर दिन डिफरेंट होगा, सम अप्स एंड डाउन्स आएंगे, बट यू हैव टू बी द फेस ऑफ योर कंपनी. मतलब आपका जो स्ट्रेस है वो टीम पे, एम्प्लॉयज़ पे नहीं जाना चाहिए. और एक अच्छे फाउंडर की या मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि भाई थिंग्स शुड नॉट गेट आउट ऑन टू द टीम मेंबर. लाइक आपके अगर आप अच्छा कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, मतलब आपके बैंक में पैसे हैं या नहीं है, फ़र्क नहीं पड़ता. जो कल्चर आपको बिल्ड करना है कंपनी का, वो बिल्ड करना है, राइट. सो दे आर सर्टेन थिंग्स जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है. डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी फाउंडर. और वो करोगे तो चीज़ें बनेंगी. एंड सेकेंड इज़ कि आपका जो विज़न है वो जितना लार्जली आप शेयर करोगे अपने टीम में या लोगों के साथ, आइडिया कहीं से भी आ सकता है. मतलब आई मीन हमने तो आइडिया से बिज़नेस स्टार्ट किया है, बट उसके बाद भी छोटे छोटे आइडियाज़ हैं जो आपके टीम मेंबर्स दे सकते हैं. बिकॉज आप एक चीज़ सोच रहे हो, वो 10 चीज़ें सोच सकते हैं. सो वो वाला पावर अगर आप इनेबल कर दो अपनी कंपनी में, तो आपके आज 100 एम्प्लॉयज़ हैं तो आपके पास 1000 आइडियाज़ आ जाएंगे, राइट. तो अगर वो माइंडसेट है और वो आप हर महीने टाउन हॉल में डिस्कस कर सकते हो, सो हैव अ ओपन कल्चर इज़ व्हाट आई हैव लर्नड कि भाई आपको करना चाहिए. बिकॉज आप खुद से घुट के डिस्कस करे बिना चीज़ें नहीं कर सकते. यू हैव टू ओपन अप. तो आई थिंक वो वाला आप अगर थ्रेशोल्ड क्रॉस कर लेते हैं तो इट बिकम्स गुड एंड मोर स्केलेबल, मुझे ऐसा लगता है. Got it. तो सुदीप को आगे क्या चाहिए ज़िंदगी में? What is he looking for? Why has he built a business? Why is he trying again and again? What's the end game? क्या चाहत क्या है ज़िंदगी? नहीं, आई थिंक बिज़नेस करना है. और आई थिंक जो चीज़ें गलत हुई या जो चीज़ें ढंग से नहीं कर पाए पहले बिज़नेस में, वो सारी चीज़ें कितना बड़ा, कितना मतलब क्या चाहते हो? अच्छा साइजेबल बिजनेस जो कि एक अच्छा एग्जिट दिला सके और पैसे बन सके. ऑब्जेक्टिव ये है. और हाँ, प्रॉब्लम सॉल्व करे. कितने पैसे? कोई डेफिनेशन नहीं है, फिर भी नहीं, ऐसा कोई एम्बिशन नहीं है. मेरे को ऐसा लगता है कि ईयर ऑन ईयर आप बनाते चले जाओ जितना आप अच्छा. But you're not eyeing a number. आई एम नॉट आइंग A good exit गुड एग्जिट is what you're. वो कुछ भी नंबर हो सकता है. मतलब एंड ऑफ द डे एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी में बहुत बड़ा आप अपने लिए एक बेंचमार्क सेट करो तो नहीं ठीक होता. मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने धंधे पे फोकस करो, नंबर अपने आप Let it be limitless. कुड बी. सो एंड ये बिजनेस हम जो बना रहे हैं वो इंडिया तक सीमित नहीं रहने वाला. बिकॉज मेट्रो लोकेशंस के बाद वी इंटेंड टू लॉन्च आउटसाइड इंडिया एज वेल. सो या तुम्हारा धंधा थोड़ा सा टिपिकल है कि लोगों का सामान इकट्ठा कर रहे हो तुम, एंड समटाइम्स इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट. ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ है? कस्टमर्स को कैसे डील करते हैं? नहीं, आई थिंक कस्टमर्स डिफरेंट तरीके के होते हैं. अब एक बहुत ही अमेजिंग सिनेरियो था जो मैं शेयर करना चाहूँगा. अब कस्टमर्स ने हस्बैंड वाइफ हैं, उन्होंने सामान स्टोर कर लिया. एंड टिपिकली हमारे सामान के साथ कस्टमर एक नॉमिनी डिक्लेयर करता है, राइट. जो नॉमिनी कोई भी हो सकता है जो सामान ले सकता है. तो अगर आपके नाम पे KYC है तो आकाश का नाम है, तो आकाश के नाम पे ही हम सामान रिटर्न करते हैं, राइट. उन्होंने स्टोर जो बंदा होता है, और नॉमिनी अगर उनकी वाइफ हैं या फिर उनकी फैमिली मेम्बर है तो उन्हीं को देंगे, राइट. अब यहाँ पे सिनेरियो कुछ ऐसा हुआ कि एक सज्जन ने अपना सामान स्टोर किया अपनी वाइफ के साथ कोविड के दौरान, और उनके 1.5 साल के बाद उन्होंने सामान लेने आए. अब उनकी वाइफ आ जाती हैं सामान लेने के लिए और बोलती हैं कि भाई हमारा तो डिवोर्स हो गया.
उस वक्त वहाँ पर अब हम सिचुएशन में है कि भाई हस्बैंड तो आए नहीं, उन्होंने बताया नहीं, हमारी नॉमिनी थी नहीं, आधार कार्ड पे दिखा दिया उन्होंने। हमने बोला अब हस्बैंड तो है नहीं, क्या करें, सामान कैसे दे दें। अब हस्बैंड दूसरे CRM मैनेजर को फ़ोन कर रहे हैं कि भाई मैं आऊँगा सामान लेने, उनको मत देना। और वहाँ पे हमारे वेयर हाउस पे पहुँच गई पुलिस क्योंकि ये था डिवोर्स का केस। सामान देना है हस्बैंड को या वाइफ को, वो समझ में नहीं आ रहा है, लड़ाई हो रही है वहाँ पे, यू नो। तो सिनेरियोस इस तरीके से था कि भाई तो ये CEO पे आई बॉल, क्या करना है? नहीं, हम मतलब हैंडल तो हो गया ऑब्वियसली। हम तो वी गो बाय द बाइबल एंड दैट इज़ वाई हम थोड़ा लीगली ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहते हैं। तो माई वाइफ कम्स इन प्ले, सो एनीथिंग विच कम्स तो इज़ हैंडल्ड बाय हर। हाँ, ये तो लीगल केस है। तो ऐसा हुआ नहीं कुछ, बट हमने वापस ही हस्बैंड को दिया बिकॉज एज पर द रूल्स उनको चाहिए। बट ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि जब आपका डिवोर्स किसी का होता है तो उनको समझ में नहीं आता क्या करें 6 महीने 1 साल। तो काफ़ी कस्टमर्स हैं US में, तो 10% ऑफ द कस्टमर्स जो हैं इस तरह के बिजनेस के करते हैं। हमारे तो अभी इंडिया में कम है। सो हम नहीं चाहते कि डिवोर्स ज़्यादा हो, बट अगर होता है तो हमारे लिए बिजनेस बनता है। और हमारा धंधा ऐसा है कि अगर इकोनॉमी बूम कर रही है या रिसेशन है तो दोनों टाइम पे हमारा धंधा चलता है। People will shift houses. People will shift houses, people will degrade or upgrade, downgrade or upgrade. So हम इसी तरीके से कुछ IPCs के साथ भी काम करते हैं, जैसे JLL कुशमैन। अब इन लोगों के साथ भाई ऑफिसेस रिलोकेट करते हैं, छोटे करते हैं, बड़े करते हैं लोगों के, कंपनीज के। सो वी कम एंड स्टोर goods for these companies. No, it's a very good offering. I think I didn't know about this offering. Now I can think about it. That there are so many use cases. आपके भी जिप इलेक्ट्रिक के काफ़ी सारी इंक्वायरीज आती रहती हैं हमें। आपकी EVs होती हैं जो आपको you take a lot of EVs and for seasonal like 3 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर। तो Oh yeah, you can find real estate for us in some of those cases. If I have to put a बिजनेसेस का होता है कि उनको पता नहीं होता कि 3 महीने 6 महीने के लिए चाहिए, तो वी आर अ टेम्पररी स्टोरेज सोल्यूशन कंपनी। आपको 15 दिन के लिए चाहिए, 15 दिन के लिए चाहिए। a larger warehouse also. How big? 50,000 स्क्वायर फीट हमारे। You can do that for a month. Our all warehouses are 50,000 square feet plus. How many are there? We have about all the cities, all the metro, Delhi, Mumbai, Bangalore, Hyderabad, Pune. अच्छा, 50,000 स्क्वायर फीट के वेयर हाउसेस तुमने ले रखे हैं. सो यू आर अ रियल एस्टेट गाय, कंटिन्यू टू बी. हाँ, बिकॉज आई थिंक दैट्स माई फोकस. मतलब एंड ओयो में भी वही किया, काश 24 में भी वही किया. वेरी इंटरेस्टिंग. नो, यू आर परफेक्ट फिट फॉर द बिजनेस मैन. तो आई थॉट कि एक कैपेबिलिटी है, उस पर कुछ बन सकता है. तो आई थिंक वी चैटेड विद योर टीम फॉर सम वर्क इन ज़िप. या मुझे याद नहीं है, बट मुझे सुनने में आया था. वेरी इंटरेस्टिंग. ग्रेट यार, गुड जर्नी, ग्रेट बिजनेस आइडिया, एंड कंटिन्यू टू हसल and kick it out of the park. Thank you. Good luck. Thanks, Akash. Thanks for being on the show. Thank you, Akash. Yeah.